ایک تھے میاں اور ایک تھی ان کی بیوی۔ میاں کھیت کا کام کرتے اور بیوی گھر داری سنبھالتی، مگر بیچاری ایسی بیوقوف باقیں ہوئی تھی کہ ہر کام کو چوپٹ کر دیتی، اور مزہ یہ کہ سارا الزام میاں پر لگاتی اور کہتی یہ تم نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہا، اب اس غلطی کی ذمہ دار میں نہیں ہوں تم ہو۔ ایک دن اچانک خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بی ہمسائی نے ان کو بکری کی ایک ران بھیجی۔ میاں نے کہا بیوی ران کے کباب تو لگا لو، اتنے مدتوں بعد گوشت نصیب ہوا ہے، جنگل میں جائیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ بیوی نے کہا کباب تو میں ایسے لگاتی ہوں کہ کوئی کیا ہی لگائے گا، تم کھیت کو جاؤ میں کباب تیار کر کے لاتی ہوں۔ میاں نے کہا یہ بات ہے، دیکھنا آتے آتے ایک جگ میں شراب بھی لیتے آنا، نیچے تہہ خانے میں شراب کا ایک پیپا بھرا ہوا رکھا ہے، مگر تاک کھولنے میں ذرا ہوشیاری رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب بہہ جائے۔ بیوی نے کہا واہ میاں واہ، کیا تم نے مجھے کچھ بیوقوف سمجھ رکھا ہے، گویا میں اتنا بھی نہیں جانتی کہ کاک کھلا رہا تو شراب بہہ جائے گی۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میاں تو کھیت کو چلے گئے اور بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ کوئلے سلگائے، ران کو خوب گودا، دہی مرچ نمک لگایا اور دہکتے ہوئے کولوں پر ران کو رکھ دیا۔ جب ایک طرف سے سرخ ہو گئی تو دوسری طرف کو پلٹا اور بیگم صاحبہ یہ سوچتی ہوئی بیٹھ گئیں کہ آج تو بڑے مزے کا کھانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ خیال آیا کہ ران تو پک ہی رہی ہے، لاؤ اتنی دیر میں پیپے میں سے شراب نکال لاؤں۔ یہ سوچ جگ ہاتھ میں لے اور ران کو کولوں پر یوں ہی چھوڑ کر تہہ خانے میں چلی گئیں۔ جگ کو نیچے رکھ کر پیپے کا کانک کھولا۔ اس وقت خیال آیا کیا رے، جب میں اندر آ رہی تھی تو دروازے کے پاس ایک کتا کھڑا بہت بری طرح سے اس ران کو گھور رہا تھا۔ اٹھی اور پیپے کے کاک کو کھلا چھوڑ فوراً بھاگی بھاگی اوپر گئی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ واقعی وہ کتا اس ران کو لیے بھاگے جا رہا تھا۔ یہ لکڑی لے کر اس کتے کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ اب آگے آگے کتا اور پیچھے پیچھے یہ تھی، مگر موئی بیگم کیا کتے کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں دم پھول گیا اور یہ سانس درست کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر میں حواس درست ہوئے تو اسے پیپے کا خیال آیا۔ گھبرا کر تہہ خانے میں پہنچی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ پیپا تو خالی ہے اور شراب کا فرش پر ایک ایک انگل دریا کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر سوچا کہ کیا خیر ہے، جگ میں تو شراب موجود ہے، آج کا دن تو مزے میں گزر ہی جائے گا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ اگر میاں نے آ کر تہہ خانے کی یہ حالت دیکھی تو کہیں گے کہ میری بیوی بھی کیسی پوہڑ ہے، شراب گری تھی تو گری تھی، اس سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ فرش کو سکھا کر جھاڑو تو دے دیتی۔ اب فکر یہ ہوئی کہ شراب کو خشک کرے تو کیسے؟ سامنے ہی آٹے کے 2 تھیلے رکھے ہوئے تھے، اللہ دے اور بندہ لے۔ وہ دونوں تھیلے فرش پر الٹ اور جھاڑو دینے لگی۔ جھاڑو جو دینے لگی تو جگ کو ٹھوکر لگی اور رہی صحیح شراب بھی بہہ گئی۔ اس نے غصے میں جگ کو اٹھا کر دور پھینک دیا اور تھوڑی ہی دیر میں جھاڑو دے کر سارا بھیگا ہوا آٹا اٹھا کر باہر پھینک آئی اور فرش کو جھاڑ جھوڑ کر چندن کر دیا۔ جب دوپہر کو کھانا نہ پہنچا تو میاں بھوکے پیاسے گھر آئے اور بیوی سے پوچھا آج ران پکا کر نہیں لائی؟ انہوں نے کہا میاں کیا بتاؤں، وہ ران تو کتا کھا گیا، میں اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، اتنی دیر میں شراب بھی بہہ گئی، فرش کو 2 بوریوں کا آٹا ڈال کر بڑی مشکل سے سکھایا ہے، ہاں اس گڑبڑ میں وہ جگ میری ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ گیا، مگر ذرا تہہ خانے میں آ کر دیکھو میں نے فرش کو کیسا صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ میاں نے کہا واہ بیوی واہ، تمہارے بھی کیا کہنے، آخر شراب کہاں بھاگی جا رہی تھی جو ران کو چھوڑ کر گئیں، اور آخر گئی ہی تھی تو پیپے کا کاک بند کر کر کیوں نہ گئیں؟ شراب بہہ بھی گئی تھی تو آٹے کا کیوں ستیہ ناس کر دیا، راکھ ڈال کر فرش کو خشک کر لیا ہوتا۔ بیوی نے کہا یہ سب کچھ تم نے مجھے پہلے کہا ہوتا تو یہ مصیبت کبھی نہ پڑتی، تم اعتراض تو کرتے ہو مگر اس وقت کرتے ہو جب نقصان ہو جاتا ہے، جو نقصان ہوا وہ میرے سبب سے تھوڑی نہ ہوا ہے، تمہارے سبب سے ہوا ہے، قصور میرا تھوڑی نہ ہے تمہارا ہے۔ یہ بھی خوب ہوئی کہ غلطی کریں آپ اور الزام دھریں مجھ پر۔ اس کے بعد میاں نے سوچا بھائی یہ عورت تو بیوقوف ہے، کہیں گھر کی جمع پونجی کسی کو اٹھا کر نہ دے دے، بہتر یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کہیں پر دفن کر دو اور اس سے کہہ دو کہ اگر اس گڑھے کے پاس گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر باغیچے میں ایک بڑا سا گڈھا کھودا، سب روپیہ پیسہ اس میں دفن کیا اور بیوی کو بلا کر کہا اگر تو یہاں گئی اور اس روپیہ پیسے کو ہاتھ لگایا تو اچھا نہ ہوگا۔ بیوی نے کہا میاں تم کہو اور میں تمہاری مرضی کے خلاف جاؤں، آخر خدا کو بھی تو جواب دینا ہے، تم خاطر جمع رکھو، نہ میں اس گڈھے کے پاس جاؤں گی اور نہ اس مال کو ہاتھ لگاؤں گی۔ چلو گئی گزری بات ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا
कि चंद बदमाश चीनी के बर्तन बेचते हुए उस किसान के घर आए। मियाँ खेत में गए हुए थे और बीवी घर पर अकेली थी। उन्होंने जो रंग बिरंगे बर्तन देखे तो लट्टू हो गई और बहुत सारे कीमती बर्तन खरीद लिए। बेसातियों ने कहा, लाओ बेगम साहिबा, इनके दाम दे दो। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। वो सामने दरख्त के नीचे मेरे मियाँ ने अपनी सारी जमा पूंजी दफन की है। तुम खुद वहाँ जाकर खोदकर उसे निकाल लो। मैंने तो वहाँ जाने और उस माल को हाथ ना लगाने की कसम खाई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस गड्ढे तक नहीं जा सकती, मगर हाँ जगह बता सकती हूँ। बसातियों ने कहा, अच्छा यूँ ही सही, हमको तो अपने पैसों से गर्ज है, आओ जगह बता दो। उन्होंने दूर खड़ी होकर वो जगह बता दी जहाँ मियाँ ने माल दफन किया था। बसातियों ने खोदकर सारा माल निकाल लिया और बहुत से बर्तन बीवी को देकर चल दिए। शाम को मियाँ घर आए तो क्या देखते हैं कि बीवी बर्तनों का एक ढेर लिए बैठी हैं। मियाँ ने कहा, अरे नेक बख्त, इतने सारे बर्तन तेरे पास कहाँ से आए? क्या कहीं से चोरी करके लाई है? बीवी ने कहा, मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं खुदा ना खास्ता चोरी क्यों करने लगी? ये बर्तन तो मैंने खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, तेरे पास खरीदने के लिए रुपये कहाँ से आ गए? बीवी ने कहा, तुमने खड्डे में जो रुपये दफन किए थे उन्हीं से खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि उस गड्ढे के पास मत जाना और मेरे रुपये को हाथ ना लगाना। बीवी ने कहा, मियाँ कसम ले लो, जो मैं वहाँ गई हूँ या किसी चीज़ को हाथ लगाया हो, मैंने तो दूर खड़े होकर बेसातियों को वो जगह बता दी थी। उन बेचारों ने बड़ी मेहनत से खोद कर वो रुपये निकाले हैं। मियाँ ने कहा, सत्यानाश हो बीवी तेरा, तूने तो मुझे तबाह कर दिया। आखिर तूने बेसातियों को वो जगह क्यों बताई? बीवी ने कहा, तुमने मुझे पहले ही कह दिया होता कि वो जगह किसी को ना बताना। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो आपका है। ये भी खूब हुई कि कसूर तो करें आप और इल्ज़ाम धरें मुझ पर। मियाँ ने कहा कि अब क्या करें? बीवी ने कहा कि करना क्या है, अभी वो थोड़ी देर ही हुई बिसाती यहाँ से गए हैं, चलो मैं और तुम उनके पीछे पीछे चलें, कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। मियाँ ने कहा, बीवी ये बात तो तुमने बड़ी समझ की कही है, चल उनका पीछा करते हैं, मगर मालूम नहीं कि उनके मिलने में कितनी देर लगे, इसलिए खाने के लिए रोटी, मक्खन और पनीर साथ रख ले। बीवी ने बहुत सा मक्खन, पनीर की 2 चख्तियाँ और 2 डबल रोटियाँ एक पोटली में बांध ली और ये दोनों उन बदमाश बेसातियों की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले होगे कि बीवी थककर चूर हो गई। मियाँ ने कहा, बीवी मैं थोड़ी दूर और आगे चलता हूँ, तुम ज़रा थकान दूर कर लो और उसके बाद इसी रास्ते से आना, कहीं ना कहीं तो मैं तुम्हें मिल ही जाऊँगा। बीवी ने कहा, हाँ मियाँ ये बात तो तुमने मेरे दिल की कही, तुम चलो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। ये सुनकर मियाँ तो आगे निकल गए और बीवी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब थकन दूर हुई तो उठी और उसी तरफ को चल दी जिस तरफ को मियाँ गए थे। रास्ता एक पहाड़ के ऊपर से जाता था और बहुत तंग था, इतना तंग था कि दोनों तरफ जो दरख्त लगे हुए थे उनके तनों की झाल छपड़ों की रगड़ से उतर गई थी। उन्होंने दरख्तों का ये जो हाल देखा तो उनके हाल पर रहम आ गया कि बेचारों पर जख्म पड़ गए हैं और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होता। फौरन रुक गई, पोटली खोली और मक्खन निकाल कर दरख्त पर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद ख्याल आया कि गर्मी की वजह से मक्खन पिघलकर उनके ऊपर से उतर न जाए, इसलिए पोटली के टुकड़े कर तनों पर लपेटे और जब कपड़ा पूरा ना आया तो अपने जिस्म के कपड़ों को फाड़ फाड़ कर ये काम किया। इसी नेक काम के अंजाम में ठोकर जो लगी तो पनीर की एक चख्ती लुढ़क कर पहाड़ से नीचे चली गई। उन्होंने पहाड़ से नीचे देखा कि ये गई तो कहाँ गई, मगर कुछ नजर न आया। अब उनके लिए ज़रूरी था कि उसका पता लगाए, इसलिए उसी जगह से जहाँ से पहली चख्ती लुढ़ी थी दूसरी चख्ती भी लुढ़ा दी और देखती रही कि यह लुढ़कती हुई कहाँ जाती है। दूसरी चख्ती भी थोड़ी देर में आंखों से गायब हो गई। खैर सब्र शुक्र करके आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर गई थी कि मियाँ मिल गए। वो बेचारे भूख से बहुत परेशान थे। खाना मांगा। उन्होंने 2 सूखी डबल रोटियां निकालकर सामने रख दी। उन्होंने कहा, अरे नेक वक्त, आखिर ये रोटियां किस चीज़ से खाऊं? आते वक्त हम मक्खन और पनीर भी तो लाए थे, वो निकाल। उन्होंने कहा, मियाँ वो मक्खन तो मैंने दरख्तों पर मल दिया, और रही बात चख्ती की तो एक चख्ती पहाड़ से नीचे लुढ़क गई। मैंने ये देखने को कि पहली चख्ती कहाँ गई है दूसरी भी लुढ़का दी। इस पर दूसरी चख्ती का भी पता न चला। मियाँ ने कहा, कम वक्त, भला दरख्तों पर भी मक्खन मला जाता है, तू जो काम करती है उल्टा ही करती है। बीवी ने कहा, मियाँ मुझे क्या मालूम था कि दरख्तों की मलहम पट्टी नहीं की जाती, तुमने मुझे पहले ही कह दिया होता। इसमें मेरी क्या गलती हुई? ये अच्छी हुई कि गलती करो तुम और इल्ज़ाम धरो मुझ पर। आखिर दोनों ने सूखी रोटी खाकर पेट भरा
और दोनों एक दरख्त के नीचे लेट गए। लेटे लेटे मियाँ को ख्याल आया कि आखिर मकान में आते वक्त कफल भी लगा कर आए हैं कि नहीं। बीवी ने कहा, कफल तो नहीं लगा कर आई। उसने कहा, जा और अभी जाकर कफल लगा कर आ, दरवाजे का भी ख्याल नहीं रहता। आखिर तू हिफाजत नहीं करेगी तो कौन करेगा। बीवी ने कहा, खफा क्यों होते हो, अभी जाती हूँ, यहाँ से घर कितने ही दूर होगा, तुम यहाँ आराम करो। मैं अभी गई और अभी वापस आई। ये कहकर बीवी जल्दी जल्दी घर पहुँची। वहाँ पहुँचकर ख्याल आया कि वापस जाती जाती खाने के लिए भी कुछ ले चलूँ। घर में इधर देखा और उधर देखा, सिवाय अखरोटों और सिरके के कुछ ना मिला। उन्होंने सराही में 2 सिरका भर लिया और अखरोटों की पोटली भर ली। बाहर निकलकर दरवाजे में कफल डाला। उसके बाद सोचा कि मियाँ की एक बात तो पूरी कर दी कि मकान में कफल डाल दिया, मगर मियाँ ने यह भी तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल तू नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा। बेहतर यही है कि मैं दरवाज़ा भी साथ ले चलूँ ताकि मियाँ के हुक्म की पूरी तामील हो सके। इधर देखा उधर देखा, करीब ही एक गोदाल पड़ी थी, उसे ले दरवाज़ा मैं चौखट अलग से निकाल लिया। दरवाज़ा सर पर रखा, एक हाथ में अखरोटों की पोटली पकड़ी और दूसरे हाथ में सिरके की सुराही पकड़ ली। उसके बाद सोचा कि इस पोटली और सिरके का बोझ क्यों उठाऊं, क्यों ना इन्हें दरवाजे के ऊपर ही रख लूं ताकि बोझ भी कम हो और चलने में भी आसानी हो। दरवाज़ा सर से उतारा, उस पर सुराही और पोटली रखी और फिर दरवाज़ा सर पर रखकर चलना शुरू कर दिया। रात के कोई 7:30 बजे होंगे कि जब ये मियाँ के पास पहुंची। वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गया कि ये नेक बख्त दरवाज़ा क्यों ला रही है। पूछा तो उसका ये जवाब दिया कि आप ही ने तो चलते हुए कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना, भला मैं यहाँ आती तो दरवाजे का कैसे ख्याल रखती, इसलिए अपने साथ ही ले आई। मियाँ ने कहा, बेवकूफ़, किसी चीज़ का ख्याल रखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसको सर पर उठाए फिरें। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि घर से बाहर जाते वक्त दरवाजे में कफल ज़रूर लगाएं। बीवी ने कहा, मियाँ पहले ही कह दिया होता, इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर तो आपका है, गलती तो खुद करें और इल्ज़ाम मुझ पर रखें। ये बातें हो ही रही थी कि सामने से कुछ आदमी आते हुए महसूस हुए। बीवी ने कहा, मियाँ ये वही बिसाती हैं, पकड़ो ना इनको। मियाँ ने कहा, अरे दीवानी हुई हो, मैं अकेला हूँ और ये 4 हैं। बेहतर ये है कि हम दोनों दरख्त पर चढ़ जाएं, इनके जाने के बाद देखा जाएगा। गर्ज दोनों दरख्त पर चढ़ गए। इसके बावजूद भी बीवी ने सर से ना दरवाज़ा उतारा और ना दरवाजे पर से अखरोटों की पोटली और ना सुराही उतारी। अब खुदा की कुदरत देखिए कि वो बदमाश बिसाकी भी उसी दरख्त के नीचे आकर ठहरे। इतने में रात हो गई, अंधेरी रात थी, इसलिए वो बिसाकी ये ना देख सके कि ऊपर कौन चढ़ा है। पहले तो कुछ खाई पकाई की और फिर चादर तान कर लेट गए। जब बोझ ना काबिले बर्दाश्त हो गया तो उसने मियाँ से कहा, मियाँ मैं तो बोझ से मरी जाती हूँ और इनमें से एक चीज़ फेंक देती हूँ, कुछ तो बोझ कम होगा। मियाँ ने कहा, खुदा के लिए रहम कर, अगर इनमें से कोई भी उठ गया तो हमारा क्या हशर होगा। बीवी ने कहा, होने दो, अब मुझसे ये सारा का सारा बोझ नहीं उठ सकता। अब ये कहकर दरवाजे पर से सिरके की सुराही उतार कर उन बिसाकियों पर उलट दी। सिरके का गिरना था कि चारों के चारों बिसाकी उठकर बैठ गए। उनमें से एक ने कहा कि यार बारिश हो रही है। दूसरे ने कहा, और ये भी देखा कि कितनी बदबूदार बारिश है। तीसरे ने कहा, अबे यार अब लेट भी जाओ, अब तो बारिश रुक भी गई, मालूम होता है कि कोई यूं ही का छींटा पड़ा है। गरज के तीनों पढ़कर सो गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि बीवी ने कहा, मियाँ अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता, मैं तो इसको कम करती हूँ। मियाँ ने कहा, खुदा का खौफ कर और हम पर रहम कर, एक बार तो न जाने हम कैसे बच गए। अब मालूम होता है कि मेरी और तेरी मौत इन लोगों के हाथ में लिखी है। बीवी ने कहा कि मियाँ जो भी हो, अब मैं अखरोट नीचे फेंकती हूँ। ये कहकर पोटली खोल और सारे अखरोट उन पर नीचे उलट दिए। अखरोटों का गिरना और बिसाकियों का चीख मारकर उठना। एक ने कहा, यार ओले पड़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, ये तो अजीब बात है कि बाहर तो एक ओला भी ना पड़े और दरख्त के नीचे ओलों का उछाल आ जाए। तीसरे ने कहा, ये तो देखो कि ओले काले और पत्थर की तरह सख्त हैं। चौथे ने कहा, दोस्तों मुझे तो इस दरख्त पर कुछ इसरार मालूम होता है, अगर हम यहाँ से उठ चलें तो बेहतर होगा। फिर एक ने कहा, हाँ है तो अच्छी ही बात, लेकिन थोड़ी देर और लेट कर देखो, अगली बार कोई गड़बड़ हुई तो फौरन यहाँ से उठकर चले जाएंगे। फिर एक ने कहा, हाँ भाई ये भी सही है, आखिर इतनी रात को इतना सारा सामान उठाकर चलना भी तो मुश्किल है। बहरहाल ये सारी बातें करके फिर से सबने लंबी तान ली। इस पर भी थोड़ी देर ना गुजरी थी कि बीवी ने कहा, मियाँ अब ये दरवाज़ा मुझसे तो नहीं उठाया जाता,
मैं अब इसको नीचे फेंकती हूँ। मियाँ रोकता रहा मगर वो अल्लाह की बंदी क्या मानने वाली थी। धड़ से दरवाज़ा नीचे फेंक दिया। दरवाजे का नीचे गिरना ही था कि वो चारों बिसाखी शोर मचाते हुए वहाँ से भागे। उनके जाने के बाद वो दोनों मियाँ बीवी दरख्त के ऊपर से नीचे उतरे, बिसाखियों का सारा सामान लिपेटा और वहाँ से दूर जाकर एक दरख्त पर चढ़ गए। जब जरा होशो हवास दुरुस्त हुए तो वो बिसाखी उस दरख्त के नीचे आए। चिराग जलाया तो क्या देखते हैं कि दरख्त के नीचे सिरके का छिड़काव है। इधर उधर कई सेर अखरोट बिखरे हुए हैं और एक टूटा हुआ दरवाज़ा पड़ा है। अब रहा खुद उनका माल और रुपया, वो गायब है। समझ गए कि इस दरख्त पर कोई देव या भूत रहता है। ये सारी कारगुजार उसी की है। अब यहाँ से भाग चलना ही बेहतर है और कहीं ये हमारे पीछे पड़ गया तो माल तो रहा एक तरफ, जान के लाले पड़ जाएंगे। ये सोचकर वो चारों के चारों वहाँ से सर पर पाँव रखकर भागे। फिर कर भी नहीं देखा। बड़ी देर तक वो दोनों मियाँ बीवी दरख्त पर बैठे रहे। उसके बाद उतरकर नीचे आए, घर का रास्ता लिया और सुबह हो रही थी कि मज़े से अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचकर मियाँ ने कहा, बीवी तू है तो बेवकूफ़, मगर इस पर क्या कहा जाए कि बाज़ औक़ात दुनिया में बेवकूफ़ वो काम कर जाते हैं कि बड़े बड़े अक्लमंद वो काम नहीं कर सकते। मैं तो समझता था कि घर की सारी जमा पूंजी जाने की वजह से हम तो बर्बाद हो गए, मगर तेरी बेवकूफ़ी ने हमारी तो किस्मत ही बदल दी। बीवी ने कहा, तो इससे पहले ही तुमने मुझसे क्यों ना कहा? मैं इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी के काम करती और इससे ज़्यादा मालो दौलत दिलाती। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है। गलती करें आप और इल्ज़ाम धरें मुझ पर। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।